अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। सो एज वी नो दैट के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है दे आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. Carbonyl compounds are polar in nature. So why they are polar in nature? As we know that the carbonyl group जो है contains carbon that is double bonded to oxygen atom. ठीक है. So there is electronegativity different between the carbon and oxygen atom. Oxygen is more electronegative as compared to oxygen atom. So that's why the pi electrons in the carbonyl bond, C double bond, are strongly attracted by the oxygen atom. ठीक है. As a result making them highly polar compounds. So there is carbonyl group की अगर हम बात करते हैं तो in which the carbon is double bonded to oxygen atoms. तो oxygen is more negative, so that's why it withdraws these electrons towards itself. ठीक है, making the carbon atom electron division center, due to which they are becoming polar compounds. So that's why this carbon atom which is electron division center, it can be attacked by nucleophiles. ठीक है. और this oxygen which is becoming electron rich center is attacked by the electrophiles. So usually as a result of this, aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. ठीक है, as compared to alkenes. अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. सो व्हाई दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? क्योंकि इनमें इस तरह की पोलरिटी नहीं होती. कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कार्बोनाइल कंपाउंड, मीन्स के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस due to carbonyl group which is polar in nature. So this carbon is can be attacked by nucleophile, and oxygen that is attacked by the electrophile, and that electrophile is usually hydrogen atom or proton. Okay, so general reaction for carbonyl compound, it contains two-step reactions, consist of two-step reactions. Nucleophilic end of the reagent, that is negative part. ठीक है, it will combines with the carbonyl carbon which is electrophilic center. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, जो यूजुअली नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, तो इसमें ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगी. टू स्टेप रिएक्शन होता है. फर्स्ट स्टेप जो होता है, चूँकि बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है, तो इसलिए ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा. सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन जो होता है, सो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इट विल गोज़ towards oxygen atom. ठीक है, या electrophile that is usually a proton, it will combines with that of the oxygen atom and form an addition product. Now this step is fast step. Why this is fast step? क्योंकि this take place between the ions. ऑलरेडी जो है ये आयनिक फॉर्म में है, तो इसलिए ये स्टेप जो है वो फास्ट होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेप, क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा. सेकंड स्टेप इसका जो होगा वो फास्ट होगा. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये आयन फॉर्म है, तो ये डायरेक्टली ये कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज अ जनरल मैकेनिज्म फॉर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. Okay, now move toward the reactions of aldehydes and ketones. So aldehydes and ketones are very active substances, and they usually undergoing addition reactions. ठीक है, and that is nucleophilic addition reaction across the carbon oxygen double bond. So why they are reactive? Due to their polar nature. ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दे में टेक प्लेस आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. अगर एसिड की प्रेजेंस में होंगे तो उसको हम कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस. बेस की प्रेजेंस में होंगे तो दैट इज बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, दे मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. First, acid catalyzed addition reactions. So when the nucleophilic addition reaction take place in the presence of acid, so this acid increases the electrophilic character of carbonyl carbon. So if the character if they increases the as they increases the electrophilic character of the carbonyl carbon, so weak nucleophile जो है they can easily approach toward this carbon atom. ठीक है,
सो वीक न्यूक्लियोफाइल्स भी जो है आके ये रेशन दे सकते हैं अगर एडिशन रेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाई? क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो कार्बन का होता है, कार्बोनिल कार्बन का, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका जो रेशन है जनरल रिएक्शन। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड शो किया गया है, तो देन एल्डिहाइड और कीटोन, इसे ये ग्रुप शो नहीं किए गए। तो H+ कहाँ से आएगा? ये एसिड से आएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो दे आर वीक बेसिस, दे आर वीक लीविस बेसिस, सो दे कैन बी प्रोटोनेटेड। क्यों वीक बेसिस होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सो दे कैन बी प्रोटोनेटेड। यू कैन से कि दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। कैन बी प्रोटोनेट का मतलब ये होगा कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इट एक्ट एज अ वीक बेस, सो दे कैन इजीली बी प्रोटोनेटेड. So oxygen atom of the acid is added to proton जो है H+ of the acid is added to that of the oxygen atom in acid catalyzed reaction. ठीक है, and form a oxonium ion. Oxonium ion formation हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन दिस फॉर्म इट इज अनस्टेबल, सो दैट्स व्हाई इट ड्रॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम। कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, सो मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रॉन डिविजन सेंटर, या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगी, या यू कैन से कि इसके इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे एक फुल पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे जो इसके ऊपर पूरा एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ऊपर जो अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो इससे न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इन acid catalyzed reactions electrophilic character of carbonyl carbon increases, so that's why weak nucleophile can easily approach, or they can easily attack on this carbon atom. ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन एटम, और क्या हो जाएगी? एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ H+ जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो H+ वहाँ जाएगा जहाँ ये इधर जो है वो एसिड से आया था। ठीक है, यहाँ H+ जो है वो एसिड से ही आया है, तो लास्ट में जो H+ रिमूव हुआ है तो दोबारा एसिड के पास जाके उसको रिकवर कर दे, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मीन्स के अंदर एसिड जो उनकी एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, तो लास्ट में ये रिकवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन को और एडिशन प्रोडक्ट को देख ले, तो यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज। इसके 4 बॉन्ड्स अब हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे कोई भी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो उनका डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन जो है दैट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। तो ये पूरा जो था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी जब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा तो कार्बोनाइल कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी आके इसके साथ जो है वो रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है दे कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। अच्छा, नेक्स्ट जो है addition reaction may be take place in the presence of base. So if the nucleophilic addition reaction take place in the presence of base, so they increases the nucleophilic character of the reagent. Nucleophilic character of reagent. This take place in the with strong nucleophiles. This take place with strong nucleophiles. Base it will react with the reagent and produce a strong nucleophile. बेस, इसमें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, सो डिपेंड्स ऑफ बेस होंगे। बेस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको जो है रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है जनरेट करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है जनरेट हुआ है तो ये इजीली इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये शिफ्ट नहीं होता फिर कार्बन के 5 बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं और कार्बन जो है वो पेंटावैलेंट नहीं है, टेट्रावैलेंट है, तो इसलिए इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप में पहले क्या होगा कि बेस जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है इस बेस से ये प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, बेस से ये प्रोटॉन जो है वो इधर ले लेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड है इसके तो ये यहाँ बेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और बेस दोबारा
स्टार्ट में जिस तरह यहाँ पे था तो वही बेस दोबारा रिकवर हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो बेस को कैटालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए बेस एसिड यूज़ कर रहे हो या बेस यूज़ कर रहे हो, दोनों केसेस में लास्ट में वो रिकवर होंगे। सही है, तो क्लियर है ये। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बेस जो है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, वो जाके फिर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और एक एडिशन प्लॉट देगा और बेस लास्ट में रिकवर हो जाएगी। बेस की प्रिंस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा किस चीज़ का, रिएजेंट का, ठीक है। तो और इसलिए फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है फॉर्मेशन होगी और इसलिए बेस कैटालाइजेशन जो है दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से होती है, ठीक है। एक एसिड कैटालाइज्ड होता है और एक बेस कैटालाइज्ड होता है। दोनों में जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इज चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिएक्टिविटी। इट मीन्स के अल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच वन इज मोर रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी को रिलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो जनरली कीटोन जो है दे आर समवट लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। कीटोन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के थ्रू। तो वो कैसे होते हैं, तो उसमें दो रीजंस है जिसके थ्रू जो है क्लियर होगा कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव। द फर्स्ट वन रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बोनाइल कार्बन अगर हम इन केस ऑफ कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स कंटेन 2 R ग्रुप्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक R ग्रुप होता है, जबकि कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स होते हैं। तो एज यू नो दैट के R ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप्स, सो दे cause more crowdings or more steric hindrance as compared to H group is small in size, ठीक है, so causes less steric hindrance and making the approach of so if R groups are present which are larger in size as in case of ketones, so they cause more steric hindrance and making the approach of nucleophile difficult। तो R ग्रुप जो है ज़्यादा जगह घेरेंगे तो इससे न्यूक्लियोफाइल के आने की जो जगह होगी या स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, जबकि अल्डिहाइड्स में जो है एक R और एक H ग्रुप होता है, तो H का साइज़ तो चूँकि छोटा होता है, स्मॉल एटम है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। सो एक रीज़न ये हुआ कि वाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। Okay, second reason is electronic effect. So as we know that कि R groups are electron donating groups, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये भी अभी हमने पढ़ा कि कार्बोनाइल कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो R ग्रुप्स चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सो दे न्यूट्रलाइज इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। तो अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स होते हैं, कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स होते हैं, जबकि अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही R ग्रुप होता है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए इज़ द नंबर ऑफ R ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बोथ आर इनवर्स। क्योंकि अगर रिएक्टिविटी क्योंकि अगर स्टेबिलिटी जो है अगर वो बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। सो कीटोन्स जो है दे हैव 2 R ग्रुप्स एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स, सो दैट्स वाई कीटोन्स जो है दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स, ठीक है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ पे 2 हैं और अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस कार्बन के ऊपर जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे। तो ये दो इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स। एक है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो these two reasons due to these two reasons aldehydes जो हैं they are somewhat more reactive than ketones। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज जो हैं इसके रिलेटेड हैं, तो इसमें क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो हैं गिवन है कुछ कंपाउंड्स, तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन सा होगा। देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक अदर अल्डिहाइड है, कोई भी R ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकते हैं और एक कीटोन है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इन सब में से जो है वो
कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा। तो कीटोन में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कंपाउंड कीटोन में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। यहाँ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इन सब में, इन तीनों में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगा, ज़्यादा जिसके ऊपर होगा, वो इस वाले केस में होगा। सो दिस वन इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। और अगर फिर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हो तो फिर ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट उसका ये होगा, और लास्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो ये होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर से क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर अदर एल्डिहाइड्स होंगे, और लास्ट में जो है वो कीटोन्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 R ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक और MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड है, सही, एक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसिटल्डिहाइड है, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है C6H5, तो एक बेंजीन रिंग अटैच्ड होगा, या आर इक्वली रिएक्टिव, सारे एल्डिहाइड्स, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी एल्डिहाइड है। तो इन सब में से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। अब यहाँ देख के 2 H ग्रुप्स हैं, यहाँ पे एक R और एक H ग्रुप है, और यहाँ पे देख के तो एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है। इन सब में जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो फॉर्मल्डिहाइड ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखिए सब में अल्डिहाइड ग्रुप है, चारों में अल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखें कि कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सिर्फ इनमें जो ग्रुप डिफरेंट है सिर्फ वो फ्लोरीन, हेलोजन से, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो देखिए कार्बोनाइल कार्बन किस केस में ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन केस में, ब्रोमीन के केस में, या आयोडीन के केस में। देखो एज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू अदर हेलोजन्स, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और कार्बोनिल कार्बन के जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको और एनहेंस करेगा, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ये फ्लोरीन वाला एटम, जिसके साथ फ्लोरीन, जिस एल्डिहाइड के साथ फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है। तो ये कुछ MCQs है जिस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कॉम्पाउंड के थ्रू, होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।